Good morning everyone. Welcome to your physics class. Today we are going to solve some questions related to alternating current. Alright. This chapter is very important. Every year 5 to 6 marks is asked from this particular chapter. One very pet question, two very pet questions from this alternating current chapter is the theory behind transformer and figure, and the other question is AC generator. Alright, so these two questions are very common, and some questions related to combination of L, C and R, these are very important. Alright, तो वो दोनों तो आप तैयार करेंगे ही, इनकी थ्योरीज. तो यही एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि एक डिवाइस दे देगा, उसको पहचानना रहेगा कि वो L है, C है कि R है. Alright, so let's come to our question, which is a device X is connected across an AC source of voltage V is equals to V naught sin omega t. Alright, the current through the device is I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2. We have to identify the device and then we have to write the reactance for this device. Obviously जब हमको पता चल जाएगा तो हम उसका reactance लिख सकते हैं. Then we have to draw the graph showing variation of current and voltage over one cycle. Alright, V और I के बीच में ग्राफ बनाना है one cycle के लिए. Then we have to draw variation of reactance with frequency. Alright, then we have to draw phasor diagram for device. Alright, तो ये सारी चीजें हमको ग्राफ ही है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है. ये 2019 में भी आ चुका है, 2018 में, 2015 में भी आ चुका है, और एक दो बार चूंकि ये थ्योरी पार्ट है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो डिवाइस एक्स की जगह मतलब कैपेसिटर की जगह कोई और डिवाइस होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं. तो 18 और 15 में तो ये आया ही है डायरेक्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व इट. हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि कुछ स्पेस हो जाए. अपने पास जो डिटेल हमको चाहिए केवल उसको हम रिटेन करेंगे. We have V equals to V naught sin omega t and I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2. We have V and I. By checking the phase difference between I and V, we can guess the device, or we can exactly say the device, which device is used here, whether voltage is leading with current or voltage is lagging with current, or voltage and current are in phase. जब in phase होता है तो केवल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है. when voltage leads the current means when current lags, तब वो इंडक्टर होता है. कितने एंगल से? पाई बाई 2 एंगल से. और जब करंट लीड करती है वोल्टेज से पाई बाई 2 एंगल से, तो वह प्योर कैपेसिटर होता है. सो वी हैव टू चेक इट. हियर करंट I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2. Pi by 2 is phase angle. Current leading the voltage with pi by 2. So this device is a capacitor. ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला. वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस. लेकिन अब ये कौन सा रिएक्टेंस है? ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा बिकॉज वी हैव अ कैपेसिटर. ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC is equals to 1 upon omega C. It is equals to 1 upon 2 pi frequency times capital C. So first question is completed.
Now come to second question. Second question was draw the variation of current with voltage for one complete cycle. Current और voltage का variation एक complete cycle के लिए. This is time axis and this is our second question ना, so put second here. तो ये मतलब ये क्वेश्चन नंबर शो कर रहा है, ठीक है. यहां वेरिएशन करना है इनका V और I का. V is sinusoidal, I is also sinusoidal. ये हम इनके टाइम पीरियड्स लिख लेते हैं, किन किन वैल्यूज पे होगा. ये 0 होगा, ये π/2, पाई, 3π/2 और 2π. V is varying sinusoidally, कोई फेज वेरिएशन नहीं, तो 0 से स्टार्ट होगा V पाई तक, फिर पाई से 2π तक. This is V. Now for I naught sin omega t plus π/2. So π/2 का फेस क्या होगा, लीड करेगा करंट से. So it will start with from here. जब ये मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जब मिनिमम होगा तो करंट विल बी मैक्सिमम, and when voltage will be maximum then current will be minimum. But the peak value of current is always smaller than the peak value of voltage. वो हमेशा थोड़ी छोटी लेनी है. I V/R होता है ना, इसलिए देखिए ठीक है. ये हो गया हमारा करंट I. तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन तक गया. थर्ड वन, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. या वहां पे केवल रिएक्टेंस लिखा था, लेकिन हमको पता है अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है. तो वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी. यू कैन सी रिएक्टेंस इज XC और फ्रीक्वेंसी कहां है, F. इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/F. आई एम ड्रॉइंग हियर. इट इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस, इट इज XC reactance, capacitive reactance. It is inverse relation, so graph will be inverse graph. All right. Now fourth one क्या था, phasor diagram. ये क्या होगा, 1/F लिख सकते हैं इसको. Fourth one was phasor diagram. Phasor diagram. Phasor diagram क्या होता था, we have to draw अब y एक्सिस और एक रेफरेंस लाइन. इट शुड बी स्ट्रेट. सी एट y एक्सिस वी हैव टू शो बोथ v एंड I. ऑलराइट. नाउ ड्रॉ द फेजर फॉर v. v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t. यानी पहली चीज तो V नॉट वाला जो वेक्टर होगा वो ओमेगा टी एंगल बना रहा होगा. तो ये हो गया हमारा V नॉट वेक्टर. अगर ये एंगल कितना बनाएगा, ओमेगा टी. और इसका जो प्रोजेक्शन होगा y एक्सिस पे, यानी ये जो लंबाई होगी ये क्या होगी, V होगी. V इज इक्वल टू V नॉट साइन टी. ठीक है. इसी तरह जब I के लिए बनेगा तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2. I is leading with π/2 from V naught. तो V naught से कितना आगे, π/2 एंगल आगे बनाओ. ये एंगल π/2 का अलग से ऐड हो गया. दूसरी चीज हमको ध्यान क्या रखनी है कि ये लंबाई हमेशा V naught से थोड़ी छोटी होनी चाहिए. ये I naught है और इसका जो लेंथ होगा यानी जो प्रोजेक्शन होगा y एक्सिस पे, ये जो हाइट आ रही होगी, दिस विल बी I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2. ये आएगा ये वाली लेंथ की. सो वी हैव सॉल्व ऑल दीज पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन जो हमने पहला देखा था. तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. Now see this question. This is second question, which is a numerical. A 2 microfarad capacitor, 100 ohm resistor
and 8 Henry inductor is connected in series with an AC source. Find the frequency of the AC source for which current drawn is maximum. Alright. So as we know, for an LCR circuit, current is maximum when the impedance is minimum. Alright. So for impedance to be minimum, Z is equals to हमने पढ़ा था रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी होल स्क्वायर. ऑलराइट. सो फॉर दैट एक्सएल एंड एक्सी शुड बी कैंसिल्ड. एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी हो जाए तो, और ये कौन सी कंडीशन होती थी? रेजोनेंस की. सो impedance to be minimum, we'll solve it for impedance to be minimum. Z is equals to R होना चाहिए, है ना. XL is equals to XC होना चाहिए. रेजोनेंस पे ही सबसे कम इंपीडेंस होगा, करंट सबसे ज्यादा होगी. तो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? एक्सएल की जगह आप रख दें ओमेगा एल और एक्सी की जगह रख दें 1 ओमेगा सी. सो दिस विल गिव यू ओमेगा स्क्वायर 1 बाई एल सी, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी. यहां वैल्यू पुट कर दें. ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाई एल की जगह रख दो 8 और सी की जगह रख दें 2 इंटू 10 पावर -6 और रूट लगा दें. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, हमें ओमेगा नहीं, हमें एफ चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो 2 पाई एफ में एफ रख दें तो 2 पाई यहां डिवाइड में भी आ जाएगा 1/2 पाई. यहां रूट जब लेंगे तो 8 2 16, 16 का रूट 4 10 पावर -3, 4 10 पावर -3 ऊपर जाएगा 10 पावर 3. वी कैन सॉल्व इट. जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू लगभग आएगी 39.2 हर्ट्ज. यू हैव टू सॉल्व इट. आप खुद सॉल्व करके इसको देखिएगा. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, इसका सेकंड पार्ट अभी मैं लिखता हूं. पहले आपने ये देख लिया. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. हमने फ्रीक्वेंसी निकालना था. सेम क्वेश्चन में अब आपको पीक वैल्यू दे रहा है. Now the question is saying if the peak value of source is 200 volt, find, पहला निकालना है मैक्सिमम करंट, दूसरा निकालना है कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस. ये दोनों ही चीज निकालनी है हमको एट रेजोनेंस. दिस होल क्वेश्चन जो भी मैंने पहले सॉल्व किया अभी और उसके बाद ये दोनों ही 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है. 2019 में था. ठीक है. तो देखिए यहां पे रेजोनेंस की बात कर रहा है, पीक वैल्यू दिया हुआ है. हमको पता है एट रेजोनेंस Z क्या हो जाता है? R हो जाता है. क्यों? क्योंकि XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है. ऑलराइट. सो Z इज इक्वल्स टू R. सो पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी, पीक वैल्यू ऑफ करंट हम लिख लेते हैं, पीक करंट I नॉट विल बी V नॉट बाई Z होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा? V नॉट बाई R, because Z is equals to R now. So it is equals to V नॉट की वैल्यू 200, R की वैल्यू 100. So it is 2 amperes. Now अगर आपसे कह देता RMS करंट निकालो, I RMS, it is equals to I नॉट बाई रूट 2 होता. I नॉट की वैल्यू 2 निकाला, रूट 2 नीचे, बचा केवल रूट 2 यानी 1.414 एम्पियर. आप इसको एक तरह से और निकाल सकते थे, 70.7% होता है. आप 2 का 70.7% निकाल लेते, 0.707 से मल्टीप्लाई,
then you will also get the same answer. Now second part, capacitive and inductive reactance at resonance. Resonance पे capacitive and inductive reactance निकालना. So resonance पे second part, first is this, XL is equals to XC always. Calculate any one. I am going to calculate XC. XC वैल्यू होती है 1 upon ओमेगा C. ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है रेजोनेंस में 1 by root LC. Put this value 1 by root LC multiplied by C. So it will be L ऊपर तो रूट ओवर ऑफ L by C ये होगा. Put the value of L and C, you will get the answer. L की जगह 2 microfarad, 2 into 10 power minus 6 divided by C की L. L will be 8 Henry divided by 2 into 10 power minus 6 farad. तो जो सॉल्व कर लीजिए, आपको 2 4 8 4 है तो 2 ऊपर आएगा और 2 into 10 power 3 will be आंसर ओम में, क्योंकि ये रिएक्टेंस है. एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होगा, दोनों की वैल्यू होगी 2 into 10 power 3 ओम्स. तो ये तो हमारा हो गया दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन. चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, third question. This question is asked in 2019. This is very good question. Using the graph given in the diagram, explain the factor which affect the sharpness of resonance. For which graph the resistance R is minimum. Actually, the sharpness graph or the resonance graph is given here between omega and I, current and frequency. Here, this frequency is resonating frequency at which peaks are given. Alright? So, peak of the current are given. We have to explain on which factors sharpness depends. What is sharpness? As we know, sharpness of any device or any circuit can be resonating circuit can be defined as the factor or the value at which value of omega naught. alright, ये हमें ये बताएगा कि जहां पे ओमेगा नॉट से थोड़ा भी वेरिएशन लेफ्ट या राइट जब हम करते हैं, ओमेगा नॉट से थोड़ी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू लेते हैं, अगर इफ आई चेंजेस एब्रप्टली, बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, decreases abruptly, then we will say that resonance is very sharp. Otherwise, अगर ये abrupt change नहीं है, जैसे यहां आप देख रहे हैं कि ओमेगा नॉट से थोड़ा ही वेरिएशन में ग्राफ तेजी से डाउनवर्ड डिक्रीज कर रहा है, करंट वैल्यू डिक्रीज कर रही है. Alright, then we will say this is sharp. Now this, by changing omega naught, decreasing or increasing, current does not decreases abruptly, or we can say current धीरे धीरे करके चेंज करती है. देन वी विल से इट इज मच शार्प देन दिस. शार्पनेस की जो कैलकुलेट करने की वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है क्वालिटी फैक्टर से. ऑलराइट, क्वालिटी फैक्टर के बारे में आपने सुना होगा. क्वालिटी फैक्टर, इसको हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं. Q इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा. ठीक है, यहां पे ये बैंडविड्थ शो करता है, कहां से कहां तक की बैंडविड्थ ले रहे हैं, और ओमेगा नॉट इसकी पीक वैल्यू. ओमेगा नॉट आपने थ्योरी में पढ़ा था, ओमेगा नॉट होता है 1 by root LC और डेल्टा ओमेगा होता है R by L. सो दिस विल बी 1 by R रूट ओवर L by C. अब यहां आप देखिए, दिस Q क्वालिटी फैक्टर डिफाइंस द शार्पनेस. शार्पनेस डिपेंड्स अपॉन R, L एंड C. तो कौन कौन से फैक्टर डिपेंड किए? R, L और C. और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था, फॉर विच ग्राफ द रेजिस्टेंस R इज मिनिमम. देखिए, क्वालिटी फैक्टर जिसका जितना ज्यादा होगा, शार्पनेस उसकी उतनी ज्यादा होगी. तो शार्पनेस ज्यादा किसकी है? मैंने आपको बताया यहां पे, क्योंकि तेजी से डिक्रीज करता है I. सो शार्पनेस फॉर दिस ग्राफ इज मैक्सिमम, sharpness of this graph is minimum. Quality factor of this graph is maximum, this graph is minimum. Quality factor.
So as we can see, Q is proportional to 1 by R, क्योंकि L और C यहां पे नहीं, यहां R के बारे में बताना है केवल क्वेश्चन में अपने. So we can say R is maximum when quality factor is minimum and R is minimum when quality factor is maximum. So quality factor is maximum here, so R1 will be minimum. तो हमारा आंसर हमको मिल गया. And we can write also R1 is smaller than R2 is smaller than R3. क्यों? क्योंकि sharpness ऊपर बढ़ रही है. ठीक है. So this is the required result. Now come to one more question. Now see this question. This question is asked in CBSE 2016 in 2 marks only. All right. How much current is drawn? देखिए, जब मैं न्यूमेरिकल आपको किसी ईयर का बताता हूं तो उस ईयर में क्वेश्चन जो थ्योरी का रहा होगा वो या तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड रहा होगा, एसी जनरेटर से रिलेटेड रहा होगा, एलसीआर के सीरीज कॉम्बिनेशंस के जो फेजर डायग्राम्स और जो वोल्टेजेस बनते हैं उससे रहे होंगे. ऐसा नहीं है कि उस ईयर में केवल यही क्वेश्चन आया है, उस ईयर में थ्योरी पार्ट के भी क्वेश्चन आए होंगे. तो ओवरऑल 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर रहते हैं. तो एकदम ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ऑलराइट. सो how much current is drawn from the primary of a transformer connected to 220 volt supply when it delivers power to a 110 volt 550 watt refrigerator? A transformer here we have an assembly of transformer like this. This is primary, this is secondary. Alright. As we know that power transfer for the transformer, अगर ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, it should be same. अगर यहाँ पावर P1 है, यहाँ P2 है, तो P1 is equals to P2, यानी सेम पावर रहेगी. यहाँ वोल्टेज V1 है, P सेम रहेगा, तो हम P1 P2 को हटा ही देते हैं, इसको P कह देते हैं. यहाँ वोल्टेज V1 हो सकता है, करंट I1 हो सकती है. यहाँ वोल्टेज V2 हो सकता है, करंट I2 हो सकती है. करंट एंड वोल्टेज विल चेंज बट द पावर विल रिमेन सेम. पावर विल बी सेम, P, तो यहाँ पे भी P. सो पावर ट्रांसफर विल बी सेम. तो यहां से यहां जितनी पावर ट्रांसफर हो रही होगी सेकेंडरी में, कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है? 550 वॉट. उतनी ही पावर यहां से दी गई होगी. सो सॉल्यूशन, पावर transfer will be same at primary and secondary. सेम होगी. सो पावर ट्रांसफर एट प्राइमरी इज P, नहीं, पावर ट्रांसफर एट सेकेंडरी इज ट्रांसफर 550 watt given. So this will be equals to power transfer of the first. पावर ट्रांसफर में फर्स्ट वाले के लिए अगर मान लीजिए वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 220 वोल्ट. सो P is equals to V into I. 550 watt will be equals to V 220 वोल्ट. मान लीजिए प्राइमरी से करंट निकाली गई थी I1. ठीक है, I1 करंट ड्रॉन फ्रॉम दी प्राइमरी. देन I1 विल बी इक्वल्स टू 550 अपॉन 220. इट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर. 55/22. आप जो भी हो इसको निकाल देना. 44 11 पॉइंट है जाएगा, 0 है, 2.5 एम्पियर्स करंट विल बी दिस मच. तो ये हो गया हमारा पावर ट्रांसफर. इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं. सो फॉर अल्टरनेटिंग करंट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट? यू हैव टू प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्मर
alternating AC generator, alternating current generator. Third topic is separate study of L, C, R, combination of LC, CR and RC. Resonating circuit means LCR circuit. LCR का सीरीज रेजोनेंट नहीं, केवल सीरीज रेजोनेंट आपके में अब इस साल है. नेक्स्ट उसके बाद शार्पनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू हैव टू prepare the graph of the sharpness, quality factor. These type of questions is usually asked from this chapter. Alright, so this is all about alternating current numericals. कुछ एक और numerical अगर important होंगे then we will discuss it in our next class. Alright, thank you.